Hello, hi, and welcome everybody. This is class 7th, lesson 4, Dr. Gauri and the Giggling Ghost lesson. This is line to line explanation in this video, and the chapter is of Ratna Sagar publication, right? And if you want to watch the video of its question answers, you should go to the playlist and watch the video. Every video will be available in the playlist of 7th and 8th class. You should just subscribe the channel and then go to the desirous playlist. Okay, so let's come to the chapter there. What do you mean by Dr. Gauri and Giggling Ghost? Why the name of the lesson is given like this there? You know, Dr. Gauri. In this animation, just focus there. He is Dr. Gauri. He is Dr. Gauri. And the giggling ghost means he heard somewhere the laughing of the ghost. Means a ghost was laughing in a silly way. Giggling means here, giggling means laughing in a silly way. Okay, so this ghost was laughing in a silly way at Dr. Gauri. That's why the name of the lesson is Dr. Gauri and the giggling ghost. Means the ghost who was laughing in a silly way at this doctor. Okay, so there is the connectivity of this chapter. Let's come to the lesson. What is going on there? Yes, you have seen such kind of things in the ghost stories, right? Like this kind of humor there. Now come to its character chart. So in the character chart, very first you should come to know how many characters are there. So the very first character is there, Golaknath Gauri. This is the name of the doctor. This is the full name of the doctor, Golaknath Gauri. He is the doctor. And you know, if the doctor is there, then patients will also be there. So patients are also there in the hospital, right? Next is there the ghost, you know, the ghost who is giggling at the doctor. Okay, so the ghost who is laughing in a silly way. Next is their plumber. What is the role of the plumber there? You will come to know at the end of the chapter. And as you have seen, see what is the plight of the doctor because of giggling, because of the strangely laughing of the ghost there, right? Next is there swivel chair. What do you mean by swivel chair? A chair on which you can turn the seat around without moving the base. Means when you will not move this base. This is the base. Look at this one. This is the base of the chair. Means you will not change this one. You will not move from there, but it will change its on there. Means एक ऐसी chair जो अपने आप ही turn हो जाती है, इसको नीचे base से turn करने की जरूरत नहीं होती. This is known as a swivel chair. Next is there indelible. Indelible means difficult or very hard or impossible to remove. Means जिसको हटाना, जिसको मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. And indelible is a word used for the ink which is you can see on the head of this doctor, right? Next is there poltergeist. Poltergeist means here this is also a kind of a ghost, and we think this kind of a ghost always make louder sounds and always throw the things on some persons, right? Next is unparalleled powers. Unparalleled means which are unequal, which are not common, means unique powers. A person or a ghost having unique powers, and here unparalleled powers are claimed by this doctor. Okay, so bigger and better ability than those of anyone else. Means to say the doctor claimed that he is having unique power as compared to the doctor, as compared to the ghost who was giggling, who was laughing in a silly way at him. Next is there immobilize. Immobilize means here stop someone or something from moving. Means किसी को चलते हुए, किसी को चलने से रोकना. Next is neglected means forget in this chapter. And the next is there, we are coming there with the chapter line to line explanation here. So the chapter name is given Dr. Gauri and the Giggling Ghost. And this short story is written by Mala Marwa. This is written by Mala Marwa, and a doctor tries to outwit. Outwit means he wanted to overcome, he wanted to control a ghost there, he wanted to defeat the ghost there. Who giggles? Who giggles means who laughed in a strange way at him. And read on the find out what happened. Now you have to read what happened in this chapter.
So the chapters begin from doctor. Every time Dr. Golaknath Gori. This is the full name of this doctor. And what is the name of the full name doctor? Dr. Golaknath Gori. Got to up, got up to fetch a glass of water from the drinking fountain. Means he had to bring a glass of water of drinking from the drinking fountain just outside his door. मीन्स बिल्कुल जस्ट आउटसाइड द डोर, बिल्कुल डोर के बिल्कुल ही बाहर एक क्या था, ड्रिंकेबल फाउंटेन था, जहां से उसको एक ग्लास वाटर जो है हर बार लेके आना होता था. एंड ही वुड हियर समवन गीगलिंग, एंड व्हेनेवर ही वाज ब्रिंगिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर he always heard giggling sound, or you can say he was just hearing the silly laughing at him. He would peep into the storm. अब जैसे आपको लगता है कि भाई कोई घोस्ट है आपके ऊपर हंस रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल पीप इनटू द स्टोर रूम और समवेयर एल्स. तो आप कहीं ना कहीं झांक के देखोगे कि यहाँ घोस्ट है, नहीं नहीं यहाँ पे घोस्ट है. आप हर जगह उसको ढूंढने की पूरी ट्राई करोगे. यू विल find everywhere the ghost. And same happened with this doctor also. This doctor peep means झांकना. He was peeping into the room, store room. एक स्टोर रूम होता है यहाँ पे, उस स्टोर रूम में वो झांक कर देखता है कि कहीं यहाँ पे तो घोस्ट नहीं है. एंड लुक्ड क्वीरली, क्वीरली मीन्स स्ट्रेंजली, बहुत ही स्ट्रेंजली वो देखने लगता है एट द नर्सेज एंड इवन द पेशेंट्स, क्योंकि वो हॉस्पिटल में था, बिकॉज ही वाज इन द हॉस्पिटल. सो इन द हॉस्पिटल नर्स वाज देयर एंड पेशेंट वाज देयर. सो नर्सेज एंड पेशेंट्स both kind of persons were there. That's why he was very strangely looking at them. But he couldn't for the life of him. For the life of means is however hard he tried, means however hard he tried means it was very hard to make them believe that what was going to happen with him. means उनको believe करवाना उसको बिल्कुल मुश्किल हो रहा था कि कैसे इनको जो वो believe करवाए कि क्या उसके साथ happening चल रही है. Make out which of them could प्रोड्यूस दैट पैकुलियर, जो पैकुलियर होता है स्पेशल, जो खी 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 की साउंड आते हैं ना, हंसते हैं कोई खी खी करके हंसते हैं, खी की साउंड जो आते हैं, दिस काइंड ऑफ साउंड इज नोन एज गीगलिंग साउंड. ओके, and it was making by the ghost. And like a child giggling, like a child always giggle and uncontrollably, means जैसे बच्चा बिल्कुल हंसता है, उसकी हंसी अनकंट्रोलेबल होती है कि जिसको उसके हंसना होता है ना वो हंस के ही रहता है, उसको ये नहीं पता कि इस बात पे हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए. बट वो जो बेबी चाइल्ड होता है वो हमेशा क्या करता है, वो हंसता है. अगर उसको लगता है कि ये बात हंसी के, तो हमेशा हंसता है उसके ऊपर. ओके, सो दैट्स व्हाई सेम हैपेंड विद देयर आल्सो. मींस ही इज कंपेयरिंग दिस की sound with a child who can never control on his laughing. This went on for weeks. Means this happening was going on from the weeks there. Means बहुत से weeks से ये चलता रहा था उसके साथ. Means someone was laughing at him. Dr. Gauri plump, bald and by now very bothered. Means जो डॉक्टर गौरी थे वो क्या थे? प्लम्प मीन्स प्लेजेंटली फैट. मीन्स इतना फैट कि मतलब अच्छा लगता है जितना फैट होना, pleasantly fat. Next is bald. Bald means जिसको गंजा बोलते हैं, means the person who is not having hair on his head, but he was not having hair on his front head. जो कि फ्रंट साइड में जैसे ये होते कि पर्सन फ्रंट साइड से उनके हेयर जो नहीं होते, हेयर रिमूव हो जाते हैं, सो दैट पर्सन इज नोन एज बाल्ड देयर. एंड बाय नाउ एवरी वेरी बोदर्ड, और अब वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुका था. थॉट ही वाज गोइंग bonkers, and he thought that he was becoming crazy about the ghost. Bonkers means going bonkers means he was going very crazy about to find the ghost. And to ask that why he was laughing at him, he started doing absent minded. means वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे absent minded हो, जैसे पागलों की तरह हो, ऐसा वो बिहेव यहाँ पर करने लगा. he put the thermometer in the patient's pocket. उसने पता क्या किया, उसने जैसे थर्मामीटर हम कहाँ पे लगाते हैं, under his tongue. हम जो डॉक्टर होते हैं पेशेंट की टंग के नीचे, मतलब जीभ के नीचे रखते हैं ना थर्मामीटर को. और उसने क्या किया, वो इतना डिप्रेशन में हो चुका, इतना एब्सेंट माइंडेड हो गया, इतना पागल सा हो गया कि उसने थर्मामीटर को पेशेंट की पॉकेट के अंदर डाल दिया. ओके, वंस ही शूक हैंड्स विद द
skeleton in his room mistaking him for a doctor। अब जैसे डॉक्टर्स का रूम होता है वहां पर skeleton का एक स्ट्रक्चर रखा होता है, जैसे skeleton होता है ना कि skeleton सबको पता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग का skeleton होता है, तो जैसे हमारा जो अस्थि पिंजर जिसको बोलते हैं कि हमारे जो हड्डियों का ढांचा होता है वो जो skeleton है, उस skeleton को कहाँ पे रखा होता है, डॉक्टर के रूम में रखा हुआ था। और एक बार वो इतना मतलब होचपोच हो जाता है कि वो क्या करता है बाय मिस्टेक उस skeleton से हाथ मिलाने लग जाता है एंड ही थॉट हिम अनदर डिपार्टमेंट डॉक्टर। वो उसको क्या सोचता है कि ये शायद किसी और डिपार्टमेंट से आया हुआ डॉक्टर है, तो इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहने लग जाता है कि वो उसको जो skeleton होता है उसको भी डॉक्टर समझ के उससे हाथ मिलाने लग जाता है ना। एंड देन द कोर्स ही येल्ड लाउडली इन फ्राइट, और फिर वो बहुत जोर से चिल्लाने भी लग जाता है। When something crazy like this happened, he would hear a sniggering खी 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 खी, और जब वो इस तरह का काम कर रहा होता है तो उसको खी खी की साउंड दोबारा से सुनाई देते। मीन्स whenever he was doing something he was hearing the sound of खी 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 खी, and he was certain that it was a noisy ghost having a good laugh at him। और वो हमेशा क्या सोचता कि वो खी खी करके जो हंसता है ना, ये वो घोस्ट है जो हमेशा से ही उसके ऊपर हंसता रहता है। एंड ही was certain that it was the noisy ghost, वो ऐसा घोस्ट है जो आवाज करता रहता है। One afternoon Dr. Gori decided to check a file on one of his patient। अब जो डॉक्टर होता है उसने सोचा कि चलो अपने पेशेंट्स की फाइल को चेक कर लेता हूँ, तो फाइल चेक करने के लिए वो क्या करता है, ही पुल्ड आउट अ स्क्रीची मेटल लैडर। एक स्क्रीची मेटल लैडर होती है, आगे एनिमेशन में दिखाऊंगी आपको, स्क्रीची मेटल लैडर है जिसपे कि वो क्लाइंब चढ़ जाता है एंड इट टू रीच द टॉप मोस्ट सेल्फ। जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे ये देखो ये होती है आपकी, जो मैंने पूछा था यहाँ पे क्या है, यस ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीची मेटल लैडर, इसको बोलते हैं स्क्रीची मेटल लैडर। लैडर में से जो सीढ़ी होती है इसको स्क्रीची मेटल की जो बनी होती है वो, ये वो सीढ़ी होती है स्क्रीची मेटल लैडर। मतलब ये जो लैडर होती है, ये जो सीढ़ी होती है वो क्या होती है यहाँ पर, आवाज करने वाली टेबल, जिसको बोलते हैं ना आवाज करके जो आगे खिसकाते हैं, ये वो वाली टेबल है। और इस टेबल पे चढ़ जाता है ताकि ऊपर से सबसे ऊपर जो सेल्फ पे जो फाइल रखी है वो उसको पढ़ सके। ऑफ द कबर्ड वेयर द फाइल वॉज, जहां पर वो फाइल थी सबसे ऊपर चढ़ के और वो क्या करता है वहां पर फाइल उतारने लगता है। बट ही मिस्ड स्टेप, लेकिन वो क्या करता है, देखो जैसे स्टेप्स होते हैं लैडर के कि एक स्टेप पे पैर रखा, फिर दूसरे पे रखा, फिर तीसरे पे रखा, फिर ऊपर वाले पे पैर रखा, तो ऐसे पैर रख के उसको ऊपर चढ़ना होता है। बट वो क्या करता है बाय मिस्टेक कि एक पैर वो इसके ऊपर लैडर के ऊपर रखना भूल जाता है और फाइल तो उतार लेता है, लेकिन एकदम से वो इतना घबरा जाता है, ही की साउंड उसको आने लगती है कि एकदम से वो घबरा जाता है और नीचे लैडर पे पैर रखना भूल जाता है। और पता है जब लैडर पे पैर रखना भूल जाओगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल फॉल डाउन। एंड सेम हैपेंड विद दिस डॉक्टर आल्सो, एंड सी व्हाट वाज द प्लाइट नाउ विद द डॉक्टर, कि डॉक्टर की क्या सिचुएशन क्या कंडीशन यहाँ पर होगी। ओके, ही फेल डाउन लाइक अ फैट बंडल ऑफ क्लॉथ, जैसे फैट बंडल ऑफ क्लॉथ होता है ना कि भारी सा बंडल का क्लॉथ का बंडल होता है, तो ऐसे वो एकदम से ऊपर से नीचे गिर जाता है। लैंडेड ऑन अ सिविल चेयर, और सिविल चेयर क्या, ये जो घूमने वाली चेयर है, इस चेयर के ऊपर जाके गिर जाता है। और यही नहीं कि यहाँ पर आकर के रुक जाता है, द फाइल रेंज डाउन लाइक सो मैनी फ्लैपिंग, और यहाँ पर जो ये फाइल होती है उसके ऊपर ऐसे गिर जाते हैं, बिल्कुल फ्लैपिंग हो जाती है, स्क्वैकिंग हो जाती है, जैसे कि बर्ड उसके चारों तरफ जो है वो अराउंड जो है वो क्या कर रहे हो, जैसे फ्लैपिंग कर रहे हो, मतलब बर्ड उसके अराउंड में घूम रहे हो। देखो जैसे ये फाइल्स है, अब फाइल्स एकदम से ऐसे हवा में उड़ जाती है जैसे कि ऐसा लगता है कि बर्ड्स उसके चारों तरफ हो यहाँ पे, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हो। एज इफ दैट वाजंट नॉट ऑल अ बॉटल ऑफ इंडिलीबल। अब यहाँ पर क्या होता है, एक जो बोतल होती है इंक की वो इंडिलीबल इंक होती है, मतलब इतनी पक्की इंक होती है, इट वाज वेरी हार्ड टू रिमूव फ्रॉम एनीवेयर। तो ये जो इंक होती है वो एकदम से उसके सर पे, देखो यहाँ पे ये रही, ये जो ब्लू कलर की इंक एकदम से उसके सर के ऊपर से आके गिरती है। और ये रही इसकी बोतल, देखो ये बोतल आपको अपीयर होगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो बोतल होती है इंक की ऊपर से आकर के इसके ऊपर गिर जाती है, उसका जो बेल्ड हेड है मीन्स जो गंजा सा सर है उसके ऊपर आके गिर जाती है। और ये इतना पक्का रंग होता है कि काफी दिन तक ये छूटता भी नहीं है। ओके, so toppled over and fell over Dr. Gore's lovely bald head। lovely bald head means जो उसका प्यारा सा हेड था, बेल्ट मतलब जो गंजा सर था उसके ऊपर आके गिर जाते हैं। And it was then as Dr. Gore was swiveling round and round with indelible ink trickling into his ears, और उसके कानों में भी वो जाकर के ईयर्स के उसके कानों में भी जाकर के वो गिर जाता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा परेशान होता है यहाँ पर कि सारी चीजें उसके ऊपर आकर गिरने लग जाती हैं। एंड आफ्टर दैट
दिस इंडेलिबल इंक ट्रिकिंग इनटू हिज ईयर्स, उसके कान में जाके गिर जाती है, एंड शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्डर्स जो होते हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर गिर जाते हैं, और ये ऐसा होते ही एकदम से उसको फिर से खी की साउंड यहाँ पर सुनाई देती है। डॉक्टर गौरी हु नॉर्मली वुडंट हर्ट अ फ्लाई, ये डॉक्टर गौरी ऐसा डॉक्टर था जिसने कभी एक फ्लाई को, एक मक्खी को भी हर्ट नहीं किया था, वॉज फ्यूरियस, आज वो बिल्कुल इतना ज्यादा परेशान हो चुका था, जैसे टाइगर होता है ऐसे वो गुर्राने लग जाता है यहाँ पर। ही स्विल्ड आउट ऑफ द स्वेवलिंग चेयर, अब जो स्वेवलिंग चेयर थी, जो घूमने वाली चेयर थी, उसमें से वो क्या बाहर उठ के आता है, एंड चार्ज्ड आउट इनटू द कॉरिडोर, और वो क्या करता है कॉरिडोर में बाहर निकलता है। एवरीवन हु सॉ हिज फेस, जो भी कोई वहां पर उसका फेस देखता है, वो क्या होता है कॉरिडोर के अंदर हर कोई उसका फेस देखता है तो बिल्कुल स्ट्रेंज से एक्सप्रेशन उसके हो जाते हैं। एवरीवन हु सॉ, जब भी उसको देखता है, अ शॉक एंड वन पेशेंट, वो हर कोई शॉक्ड हो जाता है, और जो एक पेशेंट होता है वो उससे पूछ लेता है, हु हैड just been cured of fainting fits fainted again, मीन्स एक ऐसा पेशेंट होता है जो कि उससे पूछ ही लेता कि भाई क्या हुआ है। ही वॉज yelling at the top of his voice, और वो मतलब बहुत जोर से वो बोलने लग जाता है, हर एंड देर इज अ प्रैंक प्लेइंग पोलेस्ट्रिस्ट इन दिस हॉस्पिटल, वो क्या चिल्लाने लग जाता है वो पेशेंट कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा घोस्ट है जो कि हमारे ऊपर हंस रहा है, स्ट्रेंज टाइप की साउंड करने वाला यहाँ पर घोस्ट है। एंड इट्स लाफिंग एट मी आई डॉक्टर गौरी, अब डॉक्टर के गोलू गौरी कहता है, डॉक्टर गोलू जो गौरी है ये इसी का नेम है, वो कहता है कि ये जो है वो मेरे ऊपर हंसता है, शेल ट्रैप इट, और जो डॉक्टर गौरी वो कहता है कि मैं इसको ट्रैप में मतलब जाल में फंसा सकता हूँ, कैच इट विद माई अनपैरेलल्ड पावर, कहता है कि मेरे पास इतनी यूनिक पावर है कि मैं इस घोस्ट को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, और उसने अपनी पावर्स का क्या नाम यहाँ पर दिया है, सुपर एंटी मेटापोलेस्ट्रिगिस्ट, सुपर एंटी मेटापोलेस्ट्रिगिस्ट, उसने इस पावर का नेम बोला है, मीन्स कि वो पावर है दैट can control any kind of ghost there, and I shall utterly splash it, और वो कहता है कि मैं इसको स्प्लैश भी कर दूंगा, ठीक है, स्प्लैश मीन्स यहाँ पे कि मैं यहाँ पर इसको जो है किसी न किसी तरह से कंट्रोल भी कर सकते, मीन्स ही न्यू हाउ टू कंट्रोल द घोस्ट देयर, राइट। एंड आफ्टर दैट ही वाज सेइंग दैट ही रैग्ड ऑफ इनटू हिज स्टडी नेक्स्ट डोर, अब वो नेक्स्ट डोर के सामने जाता है। द हॉस्पिटल वाज बजिंग, अब ये जो पूरा हॉस्पिटल होता है, बजिंग होता है मीन्स काइंड ऑफ साउंड देयर, जैसे बज की साउंड निकालना, जो यहाँ पर बजिंग टू मेक द साउंड ऑफ बीज, जैसे भिन भिनाना होता है कि एकदम से र्यूमर हर किसी के अंदर फैल जाते हैं कि हाँ यहाँ पर तो गिगलिंग घोस्ट है, हंसता है यहाँ पर घोस्ट, तो ये जो र्यूमर है पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। व्हाट अ पोलेस्ट्रिगिस्ट, वो मतलब सारे ऐसे बात करते क्या क्या कोई घोस्ट है यहाँ पर, कैसा घोस्ट है, इजंट अ काइंड ऑफ घोस्ट, क्या है किसी तरह का घोस्ट है, यस यस इट इज, तो जैसे यार इस तरह की बातें होती हैं कि यस हाँ घोस्ट है, ऐसा घोस्ट है, वो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो इस तरह से वो सारी की सारी बातें यहाँ पर चल रही होती पूरे हॉस्पिटल के अंदर। बजिंग का मतलब जैसे मक्खियां भिन भिनाती है, ऐसे ये बात जो पूरी तरह से भिन भिनाने लग जाती है पूरे हॉस्पिटल के अंदर। एंड रियली यस सेड एन असिस्टेंट, एक असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ सच में है, ऐसा ही घोस्ट है, आई हर्ड इट वंस वाइल, कहते कि हाँ मैंने इसको सुना है, एंड आई वाज इन हिज स्टडी, और मैं उसके स्टडी रूम में था उस टाइम पे। इट्स अ फनी सॉर्ट ऑफ साउंड, ये बहुत ही फनी सॉर्ट ऑफ साउंड है, एंड गोज खी, और कहते हैं कि जब भी कोई है, जो भी कोई घोस्ट है वहां पर खी करके हंसता है, मीन्स ही वाज द असिस्टेंट वाज सेइंग दैट somebody is there, some ghost was there who was giggling, who was laughing in a strange way at the doctor, okay, and going to splash it and was his unparalleled power, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अब क्या होगा, हमारे जो डॉक्टर उनके पास unparalleled powers हैं, और उन पावर्स का नेम फिर से क्या उसने बोला कि पता है आपको, हमारे डॉक्टर के पास ना सुपर एंटी मेटापोलेस्ट्रिगिस्ट पावर है, और जिससे वो क्या करता है यहाँ पर, वो इस पावर से उस घोस्ट को यहाँ पर जो ये बज की साउंड आती है उसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर गोरी शॉट आउट ऑफ हिज रूम अगेन, दोबारा से अपने रूम के अंदर चले जाते हैं डॉक्टर। सम ऑफ द इंक had come off on his cuffs but a great deal of it, बट यहाँ पर इतनी पक्की होती हुई इंक कि उसकी अब भी वहां से छुटकी नहीं होती, मतलब वहां से नहीं छूटती, इट वॉज वेरी वेरी डार्क कलर एंड वॉज स्टिल देयर, वो अब तक भी वहां पर इंक लगी हुई होती है। सो ही लुक्ड लाइक अ पीस ऑफ यूज्ड ब्लॉटिंग पेपर, अब भी वो कैसे कि ऐसे कि जैसे वो यूज्ड किया ब्लॉटिंग पेपर हो, मतलब वो भी उसके हेड के ऊपर चिपका हुआ होता है। एंड ही हैड अ थिंग लाइक हाइपोनिस्टिक
dies, and in his band and a round piece of glass with a thread attached. मीन्स ऐसे होता है कि जैसे वो थ्रेड के साथ अटैच्ड होती है बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है पीस ऑफ ग्लास, मतलब पीस ऑफ ग्लास भी यहाँ पर होता है. एंड आई शेल डिवेस्टिडेट द लिटिल डेविल. और ये कहता है कि यहाँ पर कोई ना कोई पक्का क्या है, घोस्ट है. कंफ्यूज हिम अटरली, और उसको पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है. इम्बोलाइज immobilize him, after which he proceeded to become quite confused himself, because he went on to say, educate him on him. Oh yes, that's exactly that I said. मिस अब यहाँ पर देखो इन लाइन से क्या पता चलता है, वो बिलीव करते कि यस यहाँ पर कोई घोस्ट है और वो उनको परेशान कर रहा है. एंड नाउ एवरीबडी वाज encouraging the doctor that he has a supreme power with the help of which he can control the ghost. And now he realized that he had come back, and so he decided to go out into the corridor again. अब वो दोबारा से कॉरिडोर में जाने के लिए रेडी हो जाता है. बट फॉर सम क्वीर, बट एकदम से क्या होता है, रीजन ही नेग्लेक्ट, लेकिन कुछ अर्जेंट रीजन से वो क्या करता है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है. टू यूज द डोर दैट वाज ओपन फॉर हिज दिस पर्पस, जिस पर्पस के लिए इस डोर को खोला होता है वो इस चीज को नेग्लेक्ट करता है, मतलब यहाँ पर जाने से वो इग्नोर करता है. ही टर्न इंस्टेड ऑफ अ क्लोज्ड डोर. अब वो किसकी तरफ टर्न करता है, एक ऐसे डोर की तरफ क्लोज करता है जो हमेशा बंद रहता है. ऑन द अदर साइड एंड प्रोसीड टू ओपन इट. उसको प्रोसीड ओपन इट मीन्स अब उसको खोलने की पूरी कोशिश करते हैं. एंड ही वाज ट्राइंग टू ओपन दैट डोर, दैट क्लोज्ड डोर, बिकॉज इट वाज क्लोज्ड फ्रॉम मैनी ईयर्स. बट इट वॉज स्टक फास्ट. उसने जोर से उसको टक्कर मारी, जोर से उसने धक्का दिया उसको डोर को, बट इट वॉज नॉट ओपन. एंड द पेंटर्स हैड, अब वो क्या सोचता है कि यहाँ पर जो पेंटर्स थे जिन्होंने इस डोर को पेंट किया था, हैड पेंटेड ओवर द डोर. ओवर द डोर मीन्स जरूरत से ज्यादा उन्होंने इस डोर को पेंट कर दिया. देखो नाउ लुक एट द एनिमेशन एज ही इज ट्राइंग टू ओपन द डोर, बट इन द बिगनिंग ही वॉज नॉट एबल टू ओपन द डोर बिकॉज इट वॉज पेंटेड ओवर एंड ओवर. ओवर एंड ओवर मीन्स कि जैसे बंद डोर था तो उसको बंद डोर पे ही कई बार उन्होंने पेंट कर दिया. इट मीन्स ये इतना जम चुका था कि इसको खोलना बहुत ही मुश्किल हो गया था. अपॉन लेयर एंड हैड नॉट बीन ओपन फॉर ईयर्स, so कई सालों से इसको खोला भी नहीं गया था इस डोर को. डॉक्टर गौरी बिकम मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया. ऑल आफ्टरनून ही ट्राइड पुलिंग, अब हर दोपहर को क्या करता, इसको खोलने की पूरी कोशिश करता, बिकॉज ही वाज सस्पिशियस दैट समहाउ द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम दैट रूम, दैट giggling sound was coming from that storeroom. That's why he was trying to open this one. Okay, and because he thought this was another trick of the ghost getting the door jammed, मतलब अब वो सोचता है कि इसको जो डोर को जाम करने की जो है अनदर ट्रिक है किसकी, घोस्ट की. मीन्स ये वहां पे ब्लेम करता है कि ये जो सारा जो इसने जो डोर को जाम किया वो सारा किसने किया है, घोस्ट ने किया है. टू ओपन just it and just to spite him, and just to spite him means each time he tugged at the handle and the giggling grew louder and louder. और जैसे वो इस डोर को खोलने की पूरी कोशिश करता, उसकी जो गिगलिंग साउंड थी इट बिकेम लाउडर लाउडर एंड मोर लाउडर, मीन्स और ज्यादा वो गिगलिंग की साउंड उसको आने लगती. until it became almost unbearable, मतलब ये बिल्कुल अनबिरेबल हो गया उसके लिए. now it was intolerable for him. So by evening Dr. Gauri was at his wits end. अब तो उसकी मतलब पूरी जो बर्दाश्त की हद थी वो खत्म हो चुकी थी. He was running a temperature and nearly हाइस्टेरिक. हाइस्टेरिक मीन्स क्या होते हैं पर हिस्टेरिकल. हिस्टेरिकल क्या होता है यहाँ पर कि दौरे पड़ने की जो हैबिट, वो जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन उसकी हो जाती है कि जैसे उसको हिस्टीरियल के दौरे यहाँ पर पड़ने लग जाते हैं. मीन्स वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है. ही पुट द थर्मोमीटर इन हिज माउथ, वो अपने माउथ में थर्मामीटर को रख लेता है. एंड लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, और मिरर में अपने आप को देखता है. और अब क्या किया उसने, थर्मामीटर को अपने माउथ में रखा और उसके बाद उसने अपने आप को मिरर में देखा. द इंडिलीबल इंक वॉज स्टिल देयर, और अब तक भी वो जो इंडिलीबल इंक थी वो वहां पर लगी हुई थी. एंड अ फ्यू बिट्स ऑफ पेपर वर स्टिल स्टक टू हिज हेड, और अब तक भी जो पेपर थे, कुछ पेपर उसके हेड पे चिपके हुए थे. हिज चिक्स वर क्रिम्सन beneath his inky forehead, और जो उसका beneath, जो उसका inky forehead था, मतलब जो उसके forehead पे ink अब तक लगी हुई थी, तो उसने मतलब यहाँ पर जो उसके cheeks थे वहां तक भी वो ink आ चुकी थी. and he looked completely crazy, वो बिल्कुल crazy दिखाई दे रहा था. then he heard the giggling ghost again, और फिर उसको दोबारा से giggling ghost की sound यहाँ पर सुनाई देती है. and
Then he heard again and Dr. Gori lost his temper. बस अब तो बर्दाश्त की हद होगी डॉक्टर गौरी की. Now little waves of a stream began curling. अब उसने क्या किया कि भी अब तो मैं इस डोर को खोलना है. And he threw himself against the closed door. उसने इतनी जोर से धक्का मारा कि अब की बार ये जो डोर है देखो कैसे ओपन हो गया. और इतने जोर से ओपन हुआ कि धक्का मारते हुए बिल्कुल उसके अंदर जाकर के गिर जाता है. जैसे हम प्रेशर में कहीं पे किसी चीज को धक्का मारते हैं तो एकदम से हम बिल्कुल आगे जाके गिरते हैं. सेम हैपेंड विद द डॉक्टर ऑल्सो. When he was opening the door, he was just fall down into the room there. And since that morning flew open with the blast, मतलब ऐसे हुआ जैसे कि बिल्कुल blast हो गया. इतनी जोर से वो डोर यहाँ पर खुल जाता है. And took Dr. Gori in with it. In with it means Dr. Gori इसके बिल्कुल अंदर चले जाते हैं. And for a moment चब्बी डॉक्टर गोरी. जो चब्बी डॉक्टर गोरी मीन्स उसके जो गाल होते जो चब्बी है मतलब यहाँ पर फैटी है थोड़ा चब्बी चिक्स हैं यहाँ पर डॉक्टर गोरी के. सेट स्टन बिल्कुल वो कहते हैं स्टन हो जाते हैं बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं यहाँ पर. स्टन्ड विद एंड डीजी और उसको चक्कर आने लग जाता है. चक्कर क्या होता है विद द साउंड लाइक 100 बिग कौन से शेल्स. कौन शेल मीन्स यहाँ पर क्या होता है शंख का. शंख किसको बोलते हैं कौन सी सेल को बोलते हैं यहाँ पे. तो उसकी जो ऐसे होता है जैसे उसके कान में जो है बहुत सारे शंख जो है वो बज गए हो एकदम से बड़े सारे शंख बजने की जैसे साउंड आ रही हो तो ऐसे उसके कान जो वो बजने लग जाते हैं. एंड कॉन्शेल्स में यहाँ पर क्या होता है कॉन्सेल्स होता है शंख की साउंड. यहाँ पर शंख बिग कॉन्सेल्स ब्लोइंग थ्रू हिज एयर जैसे उसके कान में बहुत सारे शंख की साउंड आ रही हो. व्हेन द नॉइस इन हिज हेड सबसीडेड और जब वो जो नॉइस है जो उसके हेड में बिल्कुल टकरा जाती है. एंड ही कुड फोकस अगेन और फिर दोबारा से फोकस करता है. ही वॉज स्पीचलेस एट वट ही सॉ. बिल्कुल स्पीचलेस होता है जब वो देखता है वो यहाँ पे क्या देखता है. ही सॉ द गिगलिंग घोस्ट मीन्स वट एवर ही वॉज लुकिंग फॉर जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा था अब उसने गिगलिंग घोस्ट को यहाँ पे देख लिया था. ऑफ कोर्स इट वाज अ ह्यूमनॉइड बैलून और ये बिल्कुल ह्यूमनॉइड बैलून की तरह था. कैसा था इट वाज नॉट अ ग्रीनिंग रैशेस मतलब यहाँ पर जो है राक्षस की तरह भी नहीं था. ये राक्षस जो होते ना कि जो ग्रीनिंग राक्षस होते वो राक्षस के जैसा भी नहीं था. इट वाज नॉट इवन एक्स्ट्रा टेरिटरियल और ये जो वो टेरेस्ट्रियल भी नहीं था यहाँ पर. इट वॉज एन ओल्ड सिंक. ये क्या था यहाँ पर एक्चुअली इट वॉज एन ओल्ड सिंक. ये जो था एक बिल्कुल पुराना सा सिंक था विद एंशियंट प्लम्बिंग जो कि बहुत पुराना था. और इसकी जो प्लम्बिंग की गई थी मतलब इसकी जो प्लम्ब की थी इसके अंदर जो पाइप्स थी वो भी बहुत पुरानी थी. इतनी पुरानी टैब लगी हुई थी कि बहुत सालों से इसको छेड़ा ही नहीं गया था. रन ड्राई फॉर ईयर्स और कई सालों से होने की वजह से क्या हो गई थी ड्राई हो चुकी थी बिल्कुल. एंड नेवर बीन क्लोज्ड प्रॉपरली और इनको पूरी तरह से खोला नहीं गया था. स्पाइट मीन्स डेलिबरेटली अनॉयड और अपसेट. मीन्स स्पाइट मीन्स कि किसी को जानबूझकर परेशान करना. एट हिज विट्स मीन्स सो वरीड वो बहुत ज्यादा वर्ड हो गया था. ही डिडंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट कि क्या करे वो बहुत ज्यादा वर्ड हो गया था. एंड हिस्टेरिकल मीन्स यहाँ पर जैसे दौरे पड़ना उसको बोलते हैं. टू अपसेट बहुत ज्यादा परेशान हो जाना. ठीक है. बिहेवियर और इमोशन किसी के इमोशन या किसी का बिहेवियर ऐसा हो जाना कि बिल्कुल बहुत ज्यादा अपसेट वाला हो जाना यहाँ पर. टेकिंग अ बैटरिंग मीन्स यार सफरिंग रिपीटेड अटैक्स दैट कोज डैमेज मीन्स बार बार जैसे उसके ऊपर रिपीटेडली अटैक हो रहा था तो एक तरह से उसके डैमेज का कोज बन चुका था. सब्सिडेड मीन्स यहाँ पे बिकम क्वेंच्योर. एंड ह्यूमनॉइड मीन्स यहाँ पर एक मशीन है एक ऐसा क्रिएचर है दैट लुक्स एंड बिहेव लाइक अ ह्यूमन. मीन्स यहाँ पर जो ह्यूमनॉइड है हमने इसको ह्यूमनॉइड को कहा क्योंकि ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे क्या कर रहा हो जैसे कोई ह्यूमन बीइंग ने यहाँ पर बिहेव किया हो. एंड द एयर इन द हाफ ओपन टैब मेक अ मोस्ट फैमिलियर साउंड. और देखो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे जो टैब होती है जो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो जब वो प्रॉपरली बंद नहीं होती तो उनके अंदर से एक स्ट्रेंज से साउंड आने लगती है और वही यहाँ पर खीखी की साउंड मिल रही थी. मिस्टू से देखो कितना हमने यहाँ पर देखा कि घोस्ट है बट यहाँ पर एक्चुअल में कोई घोस्ट नहीं था. एक्चुअल में यहाँ पे क्या था ये जो खीखी की साउंड आ रही थी वो आ रही थी एक टैब से. एक ऐसी टैब से जो बहुत साल पहले यहाँ पर लगी थी बहुत पुरानी पाइप थी उसके अंदर और उसकी जो है वो मतलब रिपेयर नहीं हुई थी उसको कोई यूज भी नहीं कर रहा था और जो मतलब थोड़ी सी ओपन थी जिसकी वजह से क्या था यहाँ पर खीखी की साउंड आ रही थी. तो उसने क्या किया नेक्स्ट मॉर्निंग उसने जो है सबसे पहले प्लम्बर को बुलाया. यहाँ पर प्लम्बर को बुलाया तो डॉक्टर गौरी वेंट इनटू द वॉशरूम. अब वो उसने वॉशरूम में जाते हैं वो यहाँ पर नेक्स्ट टू हिज स्टडी जो उसके स्टडी रूम से बिल्कुल नेक्स्ट होता है. आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ स्लो थिंकिंग विद अ रेंच द खीखी स्टॉप्ड. मतलब थोड़ा सा प्लम्बर ने भी यहाँ पे क्या किया थोड़ा रिपेयर किया उसको
किसको रिपेयर किया यहाँ पर, उस टैब को, उस पाइप को उसने ठीक किया, रिपेयर किया यहाँ पे, और उसके बाद जो एक खीखी की साउंड थी वो स्टॉप हो गई। अ शाइनी न्यू टैब वाज इंस्टॉल्ड, बिल्कुल नई सी शाइनी सी चमकने वाली टैब यहाँ पर उसने यहाँ पर लगा दी, किसकी जगह पे, उस पुरानी सी टैब की जगह पे, विच एक्चुअली रन वाटर, अब जिसमें से पानी एक्चुअल में निकलने लगा था, मीन्स एक्चुअली इट वाज डूइंग एक्टिव, मीन्स ये जो है एक्टिवली यहाँ पर वाटर को एक्सट्रैक्ट करने लगी थी, इंस्टेड ऑफ ड्राई रैटलिंग नॉइज। अब जैसे कि जो पुरानी, बहुत पुरानी टैब होने की वजह से क्या करती थी वो उसने नॉइज करना शुरू कर दिया था, तो जब उस पुरानी टैब को वहां से निकाल के नई जो न्यू शाइनिंग टैब वहां पे लगा दी, तो अब यहाँ पर गीगलिंग की साउंड फिनिश होगी। एंड डॉक्टर गौरी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, अब डॉक्टर गौरी ने यहाँ पर चैन की सांस ली। सो फुल ऑफ वूज and that the supply of a postage stamp in his latter try floated the all around the room like a rain of exorcist पॉपकॉर्न, मतलब उसके जो ऑफिस था उसके अंदर कैसे जो पेपर्स, जो फाइल के सारे पेपर्स बिखर गए थे, वो ऐसे बिखर गए थे जैसे पूरे रूम में पॉपकॉर्न जो है वहां पर फैले हुए हों। बट ही वॉज टू रिलीव्ड ऑफ टू केयर, बट अब वो यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल हो गया था। नाउ मिस घोस्ट वॉज वेरी केयरफुल अबाउट दैट, एंड यू नो व्हाट हैपेंड देयर, nothing was there, just only the ghost was not there, there was just only old pipe and old टैब was there, मीन्स ओल्ड टैब और ओल्ड पाइप थी यहाँ पर, जिसकी वजह से वो खीखी की साउंड यहाँ पे आते हैं। सो वी आर सेइंग देयर वाज नॉट एक्चुअली अ घोस्ट, एक्चुअली देयर वाज नॉट अ घोस्ट एंड इट वाज जस्ट ओनली द साउंड ऑफ द टैब, बिकॉज एंड व्हाई इट वाज मेकिंग द साउंड, बिकॉज it was very very old and it was not openly not properly closed there, that's why it was making the sound. So it was the chapter. If you want to watch the video of the question answer, you should go to the playlist and watch the video of question answers also. Thank you so much for watching the video.